قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اسی کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو برگزیدہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائیں۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ قارون کو جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا، اور خوب بن سمر کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور اعزا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اور خدا اس کا ہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ قارون زمین میں دھس گیا تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔
ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दरस देता है कि अगर अल्लाह ताला माल दौलत अता फरमाए तो उस फ़र्ज़ को लाजिम जाने कि अपने अम्वाल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज़ अपने माल दौलत पर गुरूर और घमंड करके ना इतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त उसका ध्यान रखते हुए तवाज़ु और इनकिसारी की आदत रखे और हरगिज़ कभी अम्बिया और औलिया सालिहीन की एज़ा रसानी और बदगोई न करे कि इन मकूलान बारगाह इलाही की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग तसव्वुर और ख़याल भी नहीं कर सकते। पूछने वाले ये बात पूछते हैं कि कारून दर हकीकत किससे ताल्लुक़ रखता था और कहाँ पर रहा करता था और उसका महल कितना बड़ा था। बनी इसराइल के ज़माने के मारूफ बादशाह कारून का महल मिस्र के जनूब मगरबी सूबे अल-फ़यूम में नहर कारून के जानूबी मगरब जानिब वाक़ है। कहा जाता है कि यह कारून का ख़ास महल है जिसके नाम का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है और अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उसको ज़मीन में धंसा दिया था। मज़कूरा महल में 3000 कमरे हैं। इसमें दाखिल होने वाला रास्ता भटक जाता है और बाहर आने तक दिमागी तवाज़ुन खो चुका होता है। ताहम आसार कदीमा और तारीख़ के मिस्री माहिरीन बावर कराते हैं कि तमाम मालूमात बेबुनियाद हैं और कारून का हकीकी महल इराक़ के इलाके नैनवा में वाक़ था। कदीम ज़माने के मिस्रियों ने इस महल को कसरे कारून का नाम इस वास्ते दे दिया कि उसके पड़ोस में नहर कारून वाक़ है। इस नहर को ये नाम इसकी कसरत तलातुम की वजह से दिया गया। इब्तिदा में उसको नहर कारून का नाम दिया गया जो बाद में बिगड़ कर नहर कारून हो गया। माहिरीन आसारियात डॉक्टर अब्दुर्रहीम रेहान ने ये बात कही कि अल-फ़यूम में वाक़ कसरे कारून और 3000 कमरों की हकीकत का इंकशाफ है। इनके मुताबिक यूनानी मुअर्रिख़ हेरोदोत ने 5वीं सदी क़ब्ल मसीह में अल-क़यूम में नहर कारून का दौरा किया था। उसने ये दावे सुन रखे थे कि कारून ही क़ब्ल मसीह में मिस्र का बादशाह, जबकि हेरोदोत की साबिका मालूमात के मुताबिक कारून का महल और इसका वाक़या आशूरा शहर नैनवा में पेश आया। हेरोदोत की तारीख़ी मालूमात इस अमर की तस्दीक करती हैं कि नैनवा का बादशाह, जिसको अबूलू के नाम से पुकारा जाता था, बहुत ज़्यादा माल दौलत का मालिक था जो ज़ेर ज़मीन ख़जानों की शक्ल में महफूज थे। डॉक्टर रेहान के मुताबिक हेरोदोत ने नैनवा और अल-फ़यूम के दोनों किस्सों को मरबूत कर दिया। बाद अज़ां ये बात ज़ाहिर हो गई कि यहूदियों ने मिस्र में मौजूदगी के दौरान गलत मालूमात को फैलाया और अल-फ़यूम में नहर की खुदाई के किस्से को कुरान करीम में मज़कूरा कारून के साथ जोड़ दिया। यहूदियों ने अफवाह फैलाई कि अल-फ़यूम का ये महल इसी कारून का है जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है और यही शख्स तौरात में क़ौरा के नाम से मज़कूर है। डॉक्टर रेहान ने वाज़े किया कि हेरोदोत के मुताबिक अल-फ़यूम में वाक़ महल 1500 कमरों पर मुश्तमिल है, जबकि इतनी ही तादाद में कमरे ज़ेर ज़मीन भी हैं। इस भूल भुलैयों में दाखिल होने के वास्ते एक रहबर की ज़रूरत होती है। मिस्र के सूबे अल-फ़यूम का नाम क़ुब्ती ज़ुबान के नाम बुबूम यानी नहर का अड्डा से निकला है। बुयूम का मतलब ही नहर का अड्डा समझा जाता है। बाद अज़ां ये फ़यूम हो गया और फिर मुसलमानों ने इसमें अल का इजाफ़ा कर दिया, जिसके बाद ये अल-फ़यूम हो गया। जहाँ तक नहर कारून के नाम का ताल्लुक़ है तो इसमें उसी कारून की जानिब इशारा है जिसका जिक्र कुरान करीम में किया गया है, मगर ये मकाम जोग्राफियाई तौर से कारून के किस्से का महल वक़ू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इससे तमाम तरह जो सूरत हाल वाज़ेह होती है वो कारून के महल वक़ू यानी कारून का जो किस्सा है उसके महल वक़ू के बारे में बात की जाती है, लेकिन इसका कतई तौर पर इससे कोई लिंक बनता हुआ नज़र नहीं आता। कारून मूसा अलैहिस्सलाम यानी जिसका तौरात में नाम क़ुरा है का रिश्तेदार था और बज़ाहिर उसने आपका दीन भी कबूल कर लिया था। नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता, लेकिन रियाकार और कमज़ोर अकीदे का इंसान था। मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। चाहता था कि लोग उससे खुशफहमी रखें ताकि उन्हें फ़रेब दे सके। कारून फसलों को पेशगी सस्ता ख़रीद लेता और बाद में उन्हें महंगे दामों पर फ़रोख्त करता। मामलात में कम तोलता, धोखा और बेइंसाफ़ी करता, सूद खाता और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता था। उसी किस्म के कामों से बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखता था। कारून खुदा परस्त न था बल्कि दौलत परस्त था। अपनी दौलत ऐशो इशरत में खर्च करता था। बहुत उम्दा महल बनाया और उनके दरो दीवार को सोने और मुख्तलिफ़ किस्म के जवाहरात से मुज़य्यन किया, हत्ता कि अपने घोड़ों और ऊँटों को सोने और जवाहरात से मुज़य्यन किया। कारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीज़ें थीं और उनके साथ बुरा सलूक करता और उन्हें मजबूर करता कि उसके सामने ज़मीन पर गिर पड़ें और उसके पाँव को बोसा दें। बाज़ अक्लमंद मोमिन उसे नसीहत करते और कहते कि कारून, ये तमाम बाग और सरवत किस लिए, ये सब दौलत और माल किस लिए ज़ख़ीरा कर रखा है? क्यों लोगों पर इतना जुल्म ढाते हो? खुदा को क्या जवाब दोगे? लोगों का हक़ क्यों पामाल करता है? गरीबों और नादारों की क्यों मदद नहीं करता?
नेक कामों में क्यों कदम नहीं बढ़ाता। कारून गरूर और तकब्बुर में जवाब देता कि किसी को इन बातों का हक नहीं पहुंचता, मैं अपनी दौलत खर्च करता हूँ। मोमिन इसे वाज करते और कहते कि इतनी बड़ी दौलत हलाल से इकट्ठी नहीं होती। अगर तूने नाइंसाफ़ी न की होती और सूद न खाया होता तो इतना बड़ा सरमाया न रखता, बल्कि तू भी दूसरों की तरह होता और उनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखता। कारून जवाब में कहता, नहीं, मैं दूसरों की तरह नहीं, मैं चालाक और मेहनती हूँ। मैंने काम किया है और दौलतमंद हुआ हूँ। दूसरे भी जाएं, काम करें, जहमत उठाएं ताकि वो भी दौलतमंद हो जाएं। मैं किस लिए गरीबों की मदद करूं। लेकिन मोमिन उसकी रहनुमाई के लिए फिर भी कहते कि तुम लोगों के हुकूक अदा नहीं करते जब ही इतने दौलतमंद हुए हो। अगर तुम मज़दूरों का हक़ अदा करते तो इतने सरवतमंद न होते और वो इतने फ़कीर और खाली हाथ न होते। अब भी अगर चाहते हो कि सारतमंद और आक़िबत बखैर हो जाओ तो अपनी दौलत को मखलूक खुदा की आसाइश और तरक्की में खर्च करो। दौलत का अंबार लगा लेना अच्छा नहीं। दौलत को इन रास्तों में के जिसे खुदा पसंद करता है खर्च करो। लेकिन कारून मोमिनीन का मजाक उड़ाता और उनकी बातों पर हंसता और गरूर और बेइतनाई से उन्हें कहता कि बेफ़ायदा मुझे नसीहत न करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ और अल्लाह पर ज़्यादा ईमान रखता हूँ। जाओ अपना काम करो और अपनी फ़िक्र करो। और फिर दुनिया ने देखा कि कारून के साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।